Hello and namaste and welcome to this exciting episode of Sattology Debunking Mythology. Sattology means science or truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. So Sattology means you should not call your history from Ramayana and Mahabharata as mythology because it actually tells somebody else that you are not speaking truth or your history has no proof. If you look at the biblical mythology, and if you call somebody as biblical mythology following, they will get really alarmed. So be careful in not using the word mythology for Hindu history, especially with the Puran, Ramayana, Mahabharata. Some of the Puranic instructions may be contradictory, but I have proved in my books they are not contradictory. I have a very special host and guest. So let us welcome Sri Vibhuti Jha from Jaipur Dialogues and many other organizations. He heads many other organizations. Namaste, Vibhuti ji. Welcome. नमस्ते नमस्ते। आपका स्वागत है। जब आपने मुझे होस्ट बना दिया तो मैं भी आपका स्वागत कर ही लूं। That's so nice to be here with you. Yes. Vibhuti ji was in India and I was in India. We were together at Jaipur Dialogues and also we were traveling all over India. I was traveling all over India also. And Vibhuti ji came a little bit earlier than me. And he was part of another event in Jaisalmer where he had posted some pictures with the camels over there. I can show you some pictures in part of the video and you can watch it that he was posing with the camels. They are also citizens of India. We need to protect them. So Vibhuti ji, the when we were at Jaipur Dialogues, one thing I really liked was the seamless event and how well organized. And been to many Hindu events, but this was different. This was the and all participants, all speakers, everyone had a common agenda, and that really touched my heart also to see. And I was very happy generally. Generally you feel happy when others are happy. I have that habit, and here everyone is united in nationalistic pride and an agenda which is common. तो जब हम लोग वहाँ पे थे, तो please share some experience over there, then we go to your other things that you did over there. Oh, thank you, आदित्य जी। हम दोनों इकट्ठे एक ही समारोह में इस तरह से उपस्थित थे। And Jaipur Dialogue, Sanjay Dikshit and his team deserves all kudos for calling this get together the Mahakumbh of Nationalists. So that was, आपने कहा ना कि सबकी ऑब्जेक्टिव एक थी, सबका मिशन एक था. So that was very powerful. And so this was very seamlessly done. You are totally right. We were all witness to the 2 days of full event that happened. And what was most impressive for me was my last session, which was on geopolitics and geoeconomics. तो उसमें 4 धुरंधर लोग थे पैनल में, और वो चारों के चारों, अभिजीत अय्यर, सुशांत सरीन, Dr. Ankit Shah, Vijay Sardana ji, each one of them could have held the platform to themselves for more than an hour each, including yours truly. I was the moderator. But what was very satisfying was everybody stayed till the end of the show, which meant that the participants were very keen to know the truth. We often say Satyamev Jayate, truth must triumph. ये हमारा नारा है भारत में, सत्यमेव जयते का. तो बस सत्य को जीतने के लिए, सत्य को जिताने के लिए हमें और आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, बिकॉज हमारे आपके खड़ा होने के सिवाय सत्य की जीत नहीं होगी. तो ये भी हमारा एक अनुभव था, और हमारा ये विचार है कि लोग सब इकट्ठे हुए थे साथ साथ, और ये महाकुंभ बहुत ही सफल रहा. मैं तो पहली बार गया था इस समारोह में. जिन लोगों ने पिछली बार अटेंड किया था, उन लोगों ने कहा कि दिस शो वाज सो मच मोर बेटर एंड मच मोर इम्प्रेसिव with both content and execution. So the Jaipur Dialogue team deserves a great congratulations and Hardik Indeed. Abhinandan for conducting the entire thing very, very successfully, right from the beginning till the end. मैं भी इसमें थोड़ा सा आहुति देता हूँ इस यज्ञ में, बोलता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद जयपुर डायलॉग्स टीम का और आप संजय दीक्षित जी का, और आप भी
आपका भी, क्योंकि यू आर आल्सो होस्ट थे। तो आप सबका बहुत, आई रियली एंजॉयड इट एंड आई रियली फील हैप्पी व्हेन Hindus do something like this and come together and ऐसे हम लोग का तो सतोलॉजी में तो हमारे सारे ग्रुप्स को हम बुलाते ही हैं। Anybody who is in the USA come together, Jaipur Dialogue, everybody should come together. And I was very, very happy generally. People coming together, participating in non-competitive way and just sharing everybody's contacts, talking. और भी जो दर्शक आए थे वो तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि सब लोगों ने इतना अच्छा, यू मेड एन होल एक्सपीरियंस ऑफ अस कमिंग टू जयपुर स्पेशल। मैं पहली बार गया था जयपुर इस बार, कभी राइट, जयपुर अच्छा, नहीं। अच्छा, मैं जयपुर पहले जा चुका हूँ, पर आपने बहुत सही बात कही कि दिस वाज नॉट कॉम्पीटिंग विथ वन अनदर, दैट वाज सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ क्लासिक देसी मेंटालिटी कि हम दूसरे को डाउन करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम दूसरे को, अपने आप को उत्साहना नहीं देते हैं, बल्कि हम अपने आप के लोगों को टंगी मारते हैं, जो बिहारी में कहते हैं, टंगड़ी मार दिया, गिरा दिया, बहुत खुश हो गए, अरे उसको हमने चौपट कर दिया। बट व्हाट वाज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस इवेंट, that each one knew what they were supposed to do, that we were all playing the same game, we are part of the same team, each one had their own responsibility, and each one was applauded. That was another very important thing. भारतीय लोग ज्यादा तालियां नहीं बजाते हैं, बहुत धीरे धीरे मरे हुए लोगों की तरह ताली बजाते हैं, लेकिन इसमें उत्साहना लोगों में बहुत ज्यादा हाँ। थी। लोगों ने तालियों से गड़गड़ा के सबका स्वागत किया, and that was for me was a very important thing, because भारत के लिए, इंडिया की लिबरलाइजेशन स्टोरी के लिए हमने अकेले ही एकला चलो रे करके बहुत युद्ध किया है। तो इसमें इस बार ऐसा लगा कि हम अकेले नहीं हैं, एक टीम है। एंड वेदर इट वाज, नाम नहीं लूंगा किसी व्यक्ति विशेष का, लेकिन बहुत से यंग लोग आए हुए थे। एक नाम लूंगा जरूर, Vikram Sampath, Dr. Vikram Sampath, the young man. It was so fascinating to see him, and so many others. I mean, I'm not singling out Vikram Sampath, Sezad Poonawala. So many people were there. And what was very gratifying, Sanjay Aditya ji, that the audience, the दर्शक लोग जो आए थे, जो मिलते थे, उनके बहुत खुशी से कहते थे हमारा स्वागत किया उन्होंने, आपका भी स्वागत किया। तो their reception of seeing the warriors in person was very gratifying for them, and it was very encouraging for people like me, क्योंकि हम तो टीवी पे करते हैं, लोगों से मुलाकात नहीं होती है। तो ले जब उन लोगों से सार्थक दर्शन हो और वो आपको इस तरह से आपका स्वागत करें, that was very fascinating, very encouraging, particularly for me. तो लोगों ने कहा कि आप 6 फुट के हैं, इतने मोटे नहीं हैं, ये पता आज देख के पता चला। That was the funny part of this funny part of the story. Yeah, that was a general comment to me also कि you look much fitter than the screen। ये That's स्क्रीन right. तो उतना ही दिखता है, इतना से फ्रेम है। That's right. Right. And बट and and the topics discussed were so brilliant. I have kept that entire thing with me to a lot of people may not get to see that, but look at the way the classic work was done. Look at the graphics were done. The entire program layout was chosen, was brilliant, brilliant. I mean, 4 नवंबर को, 5 नवंबर को, सारा कुछ show was very well organized, and I felt very good about that. That everything went clockwork precision. थोड़ा तो आगे पीछे होता ही रहता है, that's a different matter. But the enthusiastic performance was very great, and issues covered were very powerful. I would urge all the viewers today to go back to Jaipur Dialogue and look up the topic that interests you. Watch some of them. It is very likely you may not have interest in all the forums, but जिस फोरम में भी आपको इंटरेस्ट है, आप एक सैंपल करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कितना कितना डीप और कितना सीरियस काम हुआ इस बीच में। यस। नहीं, एक्चुअली जो कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज, जैसे मैंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में गया हूँ, वहाँ पे लोग दीप जलाते हैं, फिर फॉर्मेलिटीज चलती हैं लंबे समय तक, उसके बाद कुछ कल्चरल डांसेस होते हैं, और फिर कंटेंट वहाँ पे खो जाता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे अब मेरे को लग रहा था थोड़ा अमेरिकन मिक्स भी है इसके अंदर, स्ट्रेट टू द पॉइंट, लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट।
ऐसा भी लगा मुझे। That's right. वो भी भारतीय ही है, भारतीय भी ऐसे ही, जो पुराने अपने रामायण महाभारत की कॉन्फ्रेंसेस में ऐसे ही होता होगा, स्ट्रेट टू द पॉइंट, लेट्स कम टू स्ट्रेट टू द पॉइंट। Correct, यहाँ पे correct. वो मुझे अच्छा लगा कि formalities were less and we were straight diving into the topics like from the Yes, first session, that's and right. वो मुझे बहुत अच्छा लगा। We try to keep that in the US, but हम लोग तो बहुत छोटे हैं अभी इस समय, so we are trying to gradually step up to that, लेकिन to the point and let's start talking, वो मुझे Correct, बहुत अच्छा लगा पॉइंट इधर। correct. अच्छा Now मुझे एक the बात other बताइए thought, like you have started the Sattology event. You just completed the second one, and the second, I was there for both first one and the second one, and the second one was definitely larger and much more superior than the first one, right? We always learn from our experiences, right? So now you will, the third one, when you do next year, I suppose you would have learned from so many things around you to make it better still. And why yes, not? It will continue to get better, right? always better service। एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि अभी जयपुर डायलॉग्स हुआ, नेशनल भारत एक क्रॉस रोड्स, वेरी गुड थीम, and actually now by next year it will be Bharat would have crossed the crossroads, so Mm, so because Bharat is also growing, एक अभी जैसे बहुत सारा हिंदू कॉन्फ्रेंसेस होता है यूएस इंडिया में, और लेकिन एक नेशनल स्टेज पे इस तरह का कॉन्फ्रेंस इज वेरी मच नीडेड आल्सो, लाइक जयपुर डायलॉग्स, एंड जयपुर डायलॉग्स आई वुड सजेस्ट संजय दीक्षित शुड टेक ए लीड ओवर देयर, क्योंकि उसमें धार्मिक व्यू पॉइंट्स भी और ऐड हो जाएंगे और वो सब हो जाएंगे, लेकिन यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, which when you described to me I was like totally taken away on that one, क्योंकि योगा अलायंस इन नॉर्थ अमेरिका, मुझे ऐसा लगता है इट इज अंडरमाइनिंग द कॉज ऑफ योग इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लोग फीस लेते हैं और फिर गोट योगा प्रमोट होता है उसके अंदर, कोई बकरी चला रहा है, मैंने कहा गाय भी रख लो पीठ पे, मजा आ जाएगा। right. तो बट दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट डू यू डिस्क्राइब अबाउट योर एक्सपीरियंस देयर व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू जैसलमेर? Okay. 4 और 5 नवंबर को तो जयपुर जाना निश्चित हो चुका था। उसी बीच में अ, हमारे मित्र हैं डॉक्टर विक्रांत तोमर, उज्जैन के हैं, और हमारी उनकी जो है एक हम लोगों ने एक कल्पना सोची इस बात के बारे में कि चाइना का सॉफ्ट पावर क्या है? मार्शल आर्ट्स, राइट? चाइनीज का आइडेंटिफिकेशन होता है मार्शल आर्ट से। भारत का सॉफ्ट पावर क्या है? योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी। लेकिन आज की तारीख में ऐसा देखा जाए तो आज कोई भी किसी नुक्कड़ पे जाके एक योगा आश्रम खोल सकता है। दुनिया भर में इतने सारे योग आश्रम्स हैं, करेक्ट? और जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ओम को योगा से नहीं एस्टैब्लिश करते हैं, वो कहते हैं कि इट इज अ रिलीजियस थिंग, whereas we also make a mistake of saying that yoga is not nothing to do with om and all that. Controversy हो गई थी बीच में। I'm glad that it is re-established. तो इसकी जो कल्पना थी वो 3 साढ़े 3 साल पहले हुई थी, और उस कल्पना में ये हमने ये सोचा था कि भारत की सॉफ्ट पावर जो है योगा है, जो इतने सारे योगा आश्रम जो हैं दुनिया भर में, हर दुनिया के भरे कोने में है, योगा की प्रैक्टिस चल रही है, लोग अपनाए हुए हैं। हमारे पोर्ट वॉशिंगटन में साहब 5-6 जगह हैं जहां योगा आश्रम खुले हुए हैं। तो हमने सोचा कि सारे के सारे योग आश्रम को एक बैनर के अंदर लाया जाए, जिससे कि भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़े, योग का एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट हो। और हम लोगों ने पिछले 3 साल में कोविड के समय से लेकर के जूम और स्ट्रीम यार्ड वगैरह वगैरह करके हमने 3 साल बहुत सारे इवेंट्स किए, और उस इवेंट्स का ये ऐसा हुआ कि अब जो है हमें रिकॉग्निशन मिली उसको। भारत सरकार के कुछ कल्चर डिपार्टमेंट ने भी इसको देखा कि हम क्या कर रहे हैं। इसके 2-4 मुद्दे हैं। एक तो है कि सारे के सारे योगा आश्रम जो हैं बाहर विदेशों में चल रहे हैं, उनको एक अम्ब्रेला के अंदर लाया जाए। और भारत चूंकि सोर्स है योग का, जैसे आपने कहा भारत इज ऑल अबाउट योग, सनातन इज ऑल अबाउट योग, तो उसको जो है हमने अपना वर्चस्व वहां पे स्थापित किया। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि इस पिछले 3 सालों में
टेक्नोलॉजी के सहारे लेते हुए 120 कंट्रीज में हम लोगों ने अपनी पहुंच बढ़ाई और हमारे सदस्य बने हैं। तो इन तीनों इस ग्रुप का पहला इन पर्सन मीटिंग जो है, कॉन्फ्रेंस, हम 15, 16, 17 दिसंबर को जयपुर में, उज्जैन में कर रहे हैं। महाकाल का, आप उज्जैन की महत्ता मैं क्या बताऊं, वो सब जानते हैं। तो वहां पे कर रहे हैं हम। और 105 कॉन्टिनेंट, सारे के सारे पांचों कॉन्टिनेंट से इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ रहे हैं, जो जिसपे हम चर्चा करेंगे स्पिरिचुअलिटी एंड द वे ऑफ लाइफ फॉरवर्ड। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हैपन। इसकी एक और बड़ी चीज हुई है कि हमें सपोर्ट मिला और हमें ये आह्वान किया गया कि एंशियंट विजडम, इंडियन एंशियंट विजडम जो है, जो हमारे इतिहास का एक बिल्कुल हमारा अभंग यंग है, अभंग हमारे बॉडी का बिल्कुल अभंग सिस्टम है। तो इसको कैसे हम अपने मैनेजमेंट एजुकेशन में इंडिया में कैसे लाएं। तो जैसलमेर में क्या हुआ कि हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज किया हुआ था कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, many institutions, about more than 30 of them, with like minded people who were interested in experimenting and finding out how the ancient Indian wisdom can become part of modern management education in India and for corporate governance. So that was very important. Corporate governance, making it profitable, because unless until something becomes profitable, people will not pay attention to it. In addition to the fact that for years and years, the entire Indian education system is dominated by American concept, American institutes of management. एक और बात बताता हूँ, जब मैं इंडिया में पढ़ता था तो अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। मैं वहां बंबई में उसका समारोह हुआ था, मैं उसमें गया था। At that time, the American Management Association president, who was inaugurating the chapter in Bombay, said that American management is relevant to American social, cultural, political element. You have to develop your own. That was several years ago when I was a graduate student. Fast forward, 1983, when I was in Reserve Bank of India, so a management consultant, Harvard educated, Harvard management consultant had said in the Bankers Club in Bangalore when I was there, he said that Indians do not need to go to Ivy League colleges or Cambridge and Oxford to study management. The entire management practice is laid out in the study of Mahabharata, Gita, Ramayana, and our text, Vedic texts. Everything is laid out. We need to study that. Emphasis was on study, not reading. So there was this background to that. So this evolution that has happened is part of that movement. Is that how do we make Indian management, ancient Indian wisdom as part of the management tool? Now, challenge is definitely there, because something when it gets established, it's very difficult to dismantle, because everybody's used to. I mean, Mahindras and Ambanis have Wharton and Harvard Center in their own corporate world. How do you suddenly go to them and say, hey, adopt ancient wisdom? Where will it work? But one thing you have to learn from the Western world is that how successfully they have institutionalized the entire education platform. So this is a huge challenge. But what I'm very happy to tell you is that this conference of 2.5 days that we were in Jaisalmer was remarkably focused. It was very well focused. It was driven with an agenda to clearly find out how will this work. It was not an esoteric conversation कि ऐसा होना चाहिए. It was a conversation कि हमें करना क्या है. To that end, the agenda, every single person who was there, they made their own presentation. Ki what must happen? What model must we choose to be able to take it to the corporate world in India to make this happen? That was the study. And there were some very powerful people out there who were very supportive of this idea.
that how do we make this relevant to the Indian context. So we drove the agenda. It was voted in time, in that moment itself, that all the 40 of them or 35 of them voted which top five agenda must be taken forward. We also discussed what will be the problems, what will be the challenges taking it forward. So we identified the challenges. Each one contributed, it was voted, and we came to that conclusion. And each one of those speeches made is being written as a book now. Is coming out as a book, which Wow. will be presented at the Consciousness Conference in Ujjain. It will be released. Now, this is the platform. This is the way we want to go forward, and that's a pretty remarkable thing. And there is one more background to this. We are coming close to 2611. You know the history of 2611 in India. I was in Mumbai that day, in Mumbai at that day. और हमारी मीटिंग हुई थी. I don't want to name the organization, but India's top three or public sector undertakings, we can say, जहाँ के very senior, the number two guy in the company asked me, bring me, bring me the best practices from the global banking scenario which we can implement on human resources, personal policy and industrial relations area. And मैंने उनसे कहा कि देखिए साहब, कौन सा चलेगा? San Francisco Bank, Reserve Bank of San Francisco, Bank of New York, Bank of Mongolia, Bank of England, किस institution का best practice लाए हम? Why don't we develop our own ethos? This was my presentation at that time. So I'm very proud of this particular effort that is being taken. We are taking it very seriously, and I'm very happy to share with you and the audience here that the government is very caught up with that. कि हमारी जो अपनी अपनी परिभाषा है, and there will have to be, जिस तरह से integration होता नहीं है, integration is a key word. So जैसे कि Ayurved and allopathic treats the disease for the moment. It's a pain management system if you look at it. Allopathic system is essentially based on pain management system. Everything is pain reliever. It doesn't cure. Well, Ayurveda is wellness. So if you are suffering from diarrhea, at that time, wellness plan will not work. Do You not need work. Imodium. So likewise, even in this scenario, in the education and management education part of it, which I said in the conference, that we have to treat it as a cricket playing country, to treat whether we are playing a T20 game, one day 50 over, or a test match. So we have to prescribe solutions to each one of the syllables. And that's how the entire topic was chosen. That's how the issue was addressed. And I feel very proud to be involved and associated with that. And United Consciousness is that body. I think I spoke too long. No, no, But you this gave is it. a great initiative. No, I'm very proud of that. amazing initiative because United Consciousness is a need of the hour, and I like the name also because we need to really control our narrative also. You know, and you said something about the best practices. You and I, हम दोनों ही corporate world से आते हैं Right. और वहाँ पे corporate world में best practices का मतलब क्या होता है? You all know, I That's know, right. and Right. that's why you gave very good answer. What do you mean? What Right. is the best practice? I mean, whichever it works is the best practice, That's actually. right. Now, I want to take this opportunity to inform the audiences here and elsewhere that do visit the website unitedconsciousness.in, and our conference is in person as well as online. So, please do register, support, and encourage us because we are doing something that nobody else has done before. UnitedConsciousness.in, right? That's right. Yeah, yeah. मैं उसको स्क्रीन पे डाल देता हूँ हाँ, so डाल people दीजिए. can read it also. United Consciousness is dot आपको in. मैंने उसका भेजा था ना व्हाट्सएप पे. हाँ, Yeah, ये है ना? yeah, This is that's the right. website. People can That's see right. it Yeah, and they right. can go and check it out. That's right. That's right. और हम लोग जब मैं और विभूति झा जी जो जयपुर में थे तो मैंने उनको 3:30 बजे उठाया और कल सुबह 3:30 बजे उठ जाना एंड Right.
He said, "What?" And that day was my birthday also, 5th That's November. right. Yeah, And then I said, "Okay, let's go." And हम लोग मंगल आरती में भी गए. And it was that's right. fabulous experience. That's right. और वो जो राधा गोविंद जी है, दैट इज़ ए मैंने उनके बारे में इतना पढ़ा है हर जगह और सुना इतना है कि आई हैड अ वेरी इमोशनल कनेक्शन इवन वेर नेवर विजिटिंग हिम, जस्ट हियरिंग अबाउट हिम ऑल द टाइम। तो जब मैं उस मंदिर में गया तो आई हैड अ रियली रियली गुड एक्सपीरियंस टू द हार्ट्स कंटेंट। एंड आई थिंक मी एंड विभूति वर द ओनली टू इंडियन अमेरिकन्स visiting the Mangal Aarti of That's right. Radha Govind ji on 5th, actually, second day. What was your experience over there? देखिए, आपने तो इसके बारे में, उनके बारे में पढ़ा था, जानते थे, मैं नहीं जानता था। आई विल मेक अ कन्फेशन हियर। ये इतनी बड़ी मूर्ति है, इतना बड़ा मंदिर है, उसकी उसकी जो 4 बजे सुबह में जो उसकी आरती, मंगल आरती होती है, उसकी क्या महत्ता है, ये मैं नहीं जानता। तो मैं आपका आभारी हूँ। आई एम वेरी डिलाइटेड कि आपने पूछा और मैं तत्पर तैयार हो गया। तो उसका जो अनुभव था, मैं तो ये कहूंगा कि आपका बर्थडे तो था ही, लेकिन आपके आंखों से आंसू निकले उस मंदिर में दर्शन करते हुए। Yeah. आपने जब साष्टांग किया वहां पे, तो आपके आंखों में आपके आंखों आंखें भरी हुई थी। तो ये बहुत ही भावुक समय होता है। किसी चीज की महत्ता हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब वहां पे जैसे जिस जिस तरह से हमने लोगों को देखा, वहां पे भीड़ जितनी जमा थी, तो मुझे याद है आपने ये कहा, सनातन विल लिव। यू सेड समथिंग लाइक दैट हु विल से सनातन विल डाई, सनातन विल लिव। लोग एंड बोलते हैं ना सनातन धर्म डेंजर में है, वहां पे जाके सारे आपके डाउट्स दूर हो जाते हैं कि दूर हो जाते हैं, लेकिन एक एक बात उसमें और भी आती है कि जैसे हमें पता नहीं था उसके बारे में, हम लोग अपने आप को बहुत यू नो अबव एवरेज, मैं अपने आप को अबव एवरेज समझता हूं इस मामले में, कि मैं थोड़ा ज्यादा जानता हूं एवरेज लोगों से। मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। तो इतने सारे 1.4 बिलियन पीपल में कितने लोगों को इसकी महत्ता पता थी? तो आप इस बात को लोगों को बताइए, उस मंदिर के बारे में आप बताएं कि उसकी महत्ता क्या है। जिस तरह से सारी चर्चाएं वहां पे हुई थी, आई वुड वांट यू टू टेल द पीपल दैट वो जो है वृंदावनेश्वर का जो मंदिर है, वहां पे जो राधा कृष्ण है, उसकी महत्ता क्या है। आप प्लीज जरूर बताएं। अभी मैं होस्ट का रोल अपना रहा हूँ कि आप बताएं। नहीं, एक्चुअली वो राधा गोविंद जी जो है, ही इज रूप गोस्वामी की अर्च विग्रह है। वो अर्च विग्रह रूप गोस्वामी की है और उसकी सेवा रूप गोस्वामी ने की है। ये वही रूप गोस्वामी है जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से इन्होंने ही वृंदावन को बसाया, वापस ढूंढा। एक्चुअली तब वृंदावन भी खो चुका था उस समय तक, किसी को मालूम नहीं था वृंदावन है किधर। और तो वापस उन्होंने बिठाया और यही इसी मंदिर में आके मीराबाई भी भजन गाती थी। मीराबाई भी इसी मंदिर में, जयपुर में नहीं, उधर वृंदावन में जाके गाती थी। और जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो राजा, जयपुर के राजाओं ने किसी भी तरह उसको इस अर्च विग्रह को लेकर आ गए। लोग ऐसा बोलते हैं कि वज्रनाभ ने इनको स्थापित किया था वृंदावन में, ओरिजिनली वज्रनाभ ने स्थापित किया था। और ये मतलब वज्रनाभ क्योंकि इंद्रप्रस्थ दे दिया गया था कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन को, हस्तिनापुर दिया गया था जन्मजेय को। तो वज्रनाभ तो ये वही अर्च विग्रह है। तो इसलिए इतना मुझे मालूम था इतिहास। और वो मंदिर इस तरह बनाया गया राजाओं के लिए है कि हाथी घोड़ा पाल की, जो बोले जय कन्हैया लाल की, इस वो उसके अंदर लोग घुस सके, बड़े बड़े हाथी। इसलिए कॉरिडोर सारे बड़े बड़े हैं, ऊंचे ऊंचे राइट। ऊपर हैं, ताकि ऊंट घोड़े हाथी चारों उसके घूम के जा सके बाहर। और दुनिया की सबसे बड़ी मंगल आरती है वो, कंटिन्यूअसली फॉर 500 ईयर्स, 500 प्लस ईयर्स, सबसे बड़ी मंगल आरती है। एंड वी विटनेस्ड इट आवरसेल्व्स। तो इसलिए मैं यस। बोल रहा था, कौन बोलता है सनातन धर्म खतरे में? जो जो मतलब इतना, एंड आई रियली थैंक द पीपल ऑफ जयपुर। उन्होंने इतना अच्छी तरह मेंटेन किया वो ट्रेडिशंस, कि वो ट्रेडिशंस, आई थिंक मैंने तो ये भी बोल रहा था कि यही जयपुर के राजा है यहाँ पे बैठे हुए हैं। बट अमेजिंग, डेट इज ब्यूटीफुल। दैट्स वो राइट। वृंदावन स्थल की बनी हुई है, काले पत्थर की, महाभारत काल की
ज्यादातर भी जो अर्च विग्रह हैं सारे काले पत्थर की हैं। तो इट इज ए इट शोज दैट इट इज पार्ट फ्रॉम दैट पीरियड ओनली। और आई थिंक भारत में कुछ ही जगह ऐसी होंगी जो इतनी इंपॉर्टेंट है। कुछ ही जगह होंगी जहाँ पे ट्रेडिशंस आर लाइव लिविंग है सारे ट्रेडिशंस। तो वो एकमात्र जगह, और उसका एंट्रेंस और एग्जिट भी काफी क्लीन है। और मेरे को लग रहा था जूते, हम लोग जूते का वी आर वरीड अबाउट द शू, मैं तो वरीड था अंदर से। तो उधर इट वाज सो मच क्राउड एंड एवरीबॉडी वाज जस्ट टेकिंग दर्शन एंड कमिंग आउट। वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली। एंड एंड दैट वाज द Jaipur dialogues highlight Thai, and this was my second highlight on the special day. You know, it राइट, was इट वाज truly remarkable। और हमें वहां पे उस खास मंदिर का नाम क्या था जहां हम यू गणेश भगवान Seth. और हाँ Seth है वो, मतलब एग्जैक्ट फर्स्ट टाइम याद नहीं हाँ है। दैट्स राइट, सेठ। वहां पे वही एक मंदिर है जहाँ की गणेश जी को सेठ का रूप दिया गया है ना। करेक्ट, वो सेठ के जैसे बैठे हुए हैं। That's right. Say it. That's right. That was very. I've taken the picture of that. I have it. Yeah, Maybe I'll post it today after the show. yeah. That is that's truly remarkable. गणेश जी को सेठ बना के वहां पे कुबेर का रूप दिया हुआ है वहां पे, है कुबेर ना। का रूप हुआ है। That's सभी right. बिजनेस वहां पे जाके प्रार्थना करते हैं। Correct. एंड इट वाज वेरी रिमार्केबल। वहां पे हम लोग तो बहुत ही सुबह थे, एंड द Correct. बेस्ट पार्ट वाज, मैंने कहा कल सुबह 3:30 में चलेंगे, विभूति जी ने बोला चलेंगे। ओके ठीक है, रेडी। मैंने फोन किया 3:30 बजे, रेडी। बेस्ट। Yes. 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 Yeah. इसको I'm very proud of my astha, and I encourage people to develop that astha. बिकॉज जब जब आप दुनिया भर घूमते हैं ना, तो ये मेरा एहसास हुआ था यहाँ आने के बाद। आई प्राउडली से दिस, आई बिकेम अ बेटर हिंदू, a better Indian, and a better human being after coming to America, realizing that how lovely and how deep, how beautiful are our traditions and our itihas. That's what विभूति I'm very proud of. And विभूति then I जी, realized that how much better we are। हम अपने जो हैं वो कहते, my favorite phrase is that if we don't create our narrative, others write about us। that's right। You are doing a great work on narrative building। Jaipur Dialogue is doing a great work on narrative rewriting, redoubling on the entire narrative building। हमें अपना इतिहास खुद ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो चौपट कर देंगे लोग हमें। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने मुँह से हम लोगों को बोलना पड़ेगा और हम लोग को वापस रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ व्हाट मेक्स अ कल्चर। अगर हमारे करेक्ट। ट्रेडिशन से हमारा कल्चर है। करेक्ट। किसी भी और कोई भी जो आस्था का स्थल है दुनिया में, चाहे मत हो, पंथ हो, जितने भी हों, सब में लोग एक, मतलब साल में एक समय जाते हैं। ये एकमात्र मंदिर है जहाँ 365 डेज़ अ ईयर विदाउट फेल करेक्ट। पीपल करेक्ट। आर देयर। करेक्ट। वेरी बाकी ट्रू। मंदिर हैं, बाकी भी रंगनाथ जी भी हैं, बाकी भी हैं। अच्छा, उसके बाद भी आप कहीं दिल्ली में आपका कॉन्फ्रेंस चला है आप जयपुर के बाद? हाँ वो चला है, उसके बारे में बाद में करेंगे। बट आई वांट टू आस्क यू, बिकॉज आप हमारे शहर गए, हमारे राज्य में गए, पटना गए, फिर आप बहुत सारे जगहों में जाके आपने अपने पुस्तकों की अ, विमोचन किया, आलोचना हुई, जो भी हुआ। तो आपके पुस्तक तो बहुत ही एक्सेप्टेड हैं। Tell us something, tell the audience a little bit more about it। I want everybody to know that we are sharing our experience, and I'm 100% sure each one of you have your own set of experiences। We are using this platform today to bring to you our experience, and it's एक्चुअली not self promotion, but believe it or not, some people might say, oh, these people were doing their self promo. No, we are not doing self promo। God has been kind to us। We have been using television for last so many years, so I do not need publicity, but I'm sharing with you and Aditya ji to tell how individuals like us, a normal individual, normal human being with normal set of issues and problems, we are able to do things, and you can too। It's my theme। हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं इस बात में कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हिंदू यूनाइटेड नहीं है। आपको आपको यूनाइटेड होने के लिए, यूनाइटेड होना जो है, कोई शर्ट सूट टाई साड़ी कुर्ता सलवार नहीं है
कि पहन लिया और यूनिटी हो जाती है। यूनिटी होती है अपने कल्चर को समझने के बाद। When the need you understand the need to protect and defend your culture, your way of life, that's the time you begin to do things ekla chalo re. Do it yourself first. Start what you can do. That's what is important. Once you begin the work individually, then you become collective. Adit Satsangi, Sanjay Dikshit, and all the people who assembled at Jaipur Dialogue, now the individual initiatives became a collective effort. And that collective effort leads to institution building, Sattology, Jaipur Dialogue, United Consciousness. These become institutional framework. And that's what we have to do. So I'm 100% sure that each one of you may have experienced things, but you never had the platform. We are giving you that platform. I'm asking all of you, share, talk to us. We are not restricted to talking to a VIP alone. We want to listen to the common people. That's why on Jaipur Dialogue USA, I generally like to bring people who are not famous. I'm not worried about how many hits and views I got. I'm worried. I believe in the concept. I'm happy with 30 warriors than 3,000 पान खाए सैया हमार। आप इस बात को सोचिएगा जरा। तो हम जो है वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। आदित्य जी, आई वांट यू टू टेल द ऑडियंस योर अबाउट द बुक specifically, and how was your experience of my home state Patna, because I'll share a joke about that later. Actually, One Arrow, the original Atlas is the latest book of mine जो मैंने रिलीज किया जयपुर डायलॉग्स में. संजय दीक्षित जी वेरी काइंड. मैंने उनको लास्ट टाइम पूछा, उन्होंने ही अलाउड मी टू डू दैट. और the importance of that book is कि whenever I used to ask people कि आप इस मंदिर में गए, क्या आप इस मंदिर में गए, and generally people will say what is the history of that place, and many times I was also not knowing it. And many of these places somebody said कि ये तो पुराणों में लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है. Then I had to, and it's a very difficult to compile because अभी आपको देखना पड़ेगा कि कोई बोलता है पांडव कालीन मंदिर है. अभी पांडव कालीन मंदिर तो बहुत, उनके पांडवों से पहले भी मंदिर बने हुए हैं, क्योंकि पांडव तो द्वापर के एंड में आए हैं. और द्वापर युग तो पूरा ही मंदिरों से भरा हुआ है, शुरू से लेकर अंत तक. मतलब द्वापर में तो वही उसका युग है कि कृते ध्यातो विष्णु त्रेताय वजो मखे द्वापरी परिचर्यायाम. द्वापर युग में अर्च विग्रह की सेवा होती, परिचर्या. कलौ तो धरी कीर्तनाथ. तो मंदिर ही मंदिर होंगे. तो ये क्वेश्चन मुझे हमेशा नैग करता था. और दूसरा कि अगर आपको मंदिर के बारे में पता लगाना है तो यू विल बी अमेज्ड विभूति जी, कॉस्मोलॉजी का ज्ञान जरूरी है. बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हमारी पूरी जो हिंदू कल्चर है वो इज अ वेरी साइंटिफिक वन, और टाइम पे बहुत बेस्ड है. लोग बोलते हैं कि लोग 5 समय पूजा करते हैं. सनातन धर्म में 24 घंटा पूजा लिखा हुआ है. 24 घंटा, एवरी आवर. तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई द जो 12 प्रहर बोलते हैं, 12 पार्ट्स में डे डिवाइड होता है. रात्रि का पहला पहर, रात्रि का अंतिम पहर, प्रातः का पहला पहर, प्रातः का दूसरा पहर, ब्रह्म मुहूर्त. तो ये सबका स्पेसिफिक कैलकुलेशंस है. मुहूर्त का कितना है ये, तो इसके बारे में पूरा मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, 2-3 बार लिखा हुआ है. तो आई compiled all this information including sun's movement एंड द जोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स विद द जीपीएस. और इसमें मुझे गूगल अर्थ का जीपीएस नहीं चाहिए, क्योंकि गूगल अर्थ का जीपीएस इज रिलेटिव जनरली. लेकिन जो अमेरिकन नेवल सैटेलाइट्स का जीपीएस होता है, दैट इज द बेस्ट वन, दैट इज आल्सो पब्लिकली अवेलेबल. यूएसडी या कोई भी यूनिवर्सिटी में जाके आप लाइब्रेरी में कर सकते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं. सो देन द I combined the description in Ramayana, Mahabharata, and Sugri's travels, Arjun's travels, Bhim's travels, Nakul's travels, Sadev's travels. तो इन सब का जो ट्रेवल्स हैं, ट्रेवलॉग्स हैं, उसको मंदिरों के साथ जोड़ना, उस पथ को, एंड देन पुट इन बुक. ये मैंने काम किया इस पुस्तक में. और मुझे काफी मेहनत हुई, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कंप्लीट नहीं है. कुछ पार्ट्स उसमें से इन्वॉल्व कंप्लीट होने चाहिए और भी. लेकिन मैंने इस बार जब मैं इंडिया ट्रैवल कर रहा था, तो मैं उन सब जगहों पर गया जिसके जिसके बारे में मैंने बुक में लिखा हुआ है.
आई वेंट टू 15-16 प्लेसेस विच आई मेंशन इन द बुक। और बुक रिलीज करते करते मैंने वो सब जगह भी डॉक्यूमेंट करी इन ए पिक्चर, टेस्ट करने के लिए। तो इसलिए जब मैं पटना गया तो पट्टन देवी के दर्शन के लिए मैंने, क्योंकि वहाँ वो मेरा फोकस थे। और ऑल्सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एमिटी यूनिवर्सिटी फॉर साइनिंग द MOU विद सत्तोलॉजी। तो कुछ कोर्सेज है एज ए माइनर वी विल इंट्रोड्यूस इन मेनी अदर कैंपसेस, लेकिन पटना में एमिटी यूनिवर्सिटी पटना के साथ हम लोगों ने MOU साइन किया, एक इस तरह का जनरल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। एंड नाउ आई नाउ वांट टू सी हाउ वी कैन डेवलप इट फर्दर, वो किया मैंने। और वहां से फिर मैं गया अमरकंटक। अमरकंटक के बारे में तो पुराणों में पेजेस लिखे हुए हैं उसका महत्व के बारे में। वहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इज डूइंग अ वंडरफुल वर्क। और वहाँ के जो VC हैं त्रिपाठी जी, ही इज डूइंग अमेजिंग। वो बड़ा इंसिडेंट हुआ, 5 मिनट के लिए बैठने वाले थे मेरे लेक्चर में, वो 2.75 घंटा बैठ कर गए। तो इट वाज वेरी हार्ड ग्रेटिफाइंग। उसके बाद मैं भोपाल में था हमारे फेमस कुसुमलता जी के साथ और रामेश्वर जी के साथ। और फिर उसके बाद मैं गया था ट्रिची। वो जो भगवान रंगनाथ जी का मंदिर है, दैट इज द डॉक्टर राजा की वजह से मुझे दर्शन हुए। और वो जो मंदिर है दैट इज मेंशन इन वाल्मीकि रामायण। तो मतलब वाल्मीकि रामायण से ही पहले का मंदिर है वो। और रंगनाथ जी बोलते हैं उनको, वो दशरथ महाराज की डेटीज थी, दशरथ महाराज उनकी सेवा करते थे। उसके पहले उस मंदिर की स्थापना की थी ब्रह्मा ने रघु महाराज को। जबकि हम बोलते हैं कि क्या रघुकुल रीत सदा चली आई, दैट सेम रघु महाराज जो भगवान राम के पूर्वज है। एंड दैट टेम्पल इज वेरी ओल्ड, वेरी वेरी ओल्ड। रिसेंटली अलवरों ने उनको वापस उसको रिसोसिएट किया था रामानुज के डायरेक्शन में। बट वो जो अर्च विग्रह है वहाँ पे डेटीज, they are actually uh, and and वहाँ पे it is the at least 3 million old, 2 years old, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। 3 million years. 3 million years, it antiquates anything which the modern scientists say। और उसकी पूजा तब से चल रही है विदाउट फेल। उस पर किसी का आक्रमण नहीं हुआ। बहुत कोशिश की गई लेकिन कभी हुआ नहीं, बिकॉज वहाँ के जो ब्राह्मण हैं और वहाँ के जो रक्षक हैं सबने उसको प्रोटेक्ट किया। यहाँ तक कि टीपू सुल्तान ने भी उसको वैंडलाइज करने की कोशिश किया था, लेकिन कुड नॉट डू इट। एंड उसके बाद में आई वेंट टू कन्याकुमारी, कन्या तीर्थ नाम है उसका, कन्या तीर्थ। एंड देन कन्या तीर्थ, एंड आई वाज इन त्रिवेंद्रम, एंड देन आई वाज इन बैक इन कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र और ये सब जगहों पे GPS कोऑर्डिनेट्स जो मैंने दिए हैं बुक्स में, वहां वहां गया मैं। एंड आई हैड ए बिग फॉलोइंग एवरीवेयर, दैट वाज इवन फनी। मेरे लिए तो थोड़ा नया एक्सपीरियंस है ये। So people were following my books and people were following, waiting for me because I had advance अनाउंस कर दिया था पहले एडवांस में। और वहां पे मुझे संजय जी से वापस माफी भी मांगनी पड़ी एक जगह पे, क्योंकि मुझे पता नहीं था डिफरेंस डायलॉग्स और लिट फेस्ट के बीच में। तो मैंने तो लिट फेस्ट कर दिया, आई डिडंट नो द डिफरेंस। बोल दिया मैंने उनको, सॉरी आई डिडंट नो द डिफरेंस, वेरी ऑनेस्ट एडमिशन। फिर उसके बाद वहां पे मैं था, और वहां पे आपको बड़ा आश्चर्य होगा, खुशी भी होगी कि जहां से हनुमान जी ने छलांग लगाई महेंद्र गिरी लंका की ओर, वो जगह वहीं पर है। वो उस जगह को मैंने वीडियो में पहली बार शायद उतारा है उसमें किसी पिक्चर्स में। और वहां मेरा ड्रोन भी क्रैश कर गया था, आई हैव टू बाय न्यू ड्रोन। और फिर वहां से देन आई वेंट टू कुरुक्षेत्र। एंड कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर महादेव, भवानी मंदिर, भद्रकाली, एंड ऑल्सो महाराजा हर्षवर्धन का किला। ये पांडवों के ही वंशज हैं। ये हस्तिनापुर से इनका डिसेंट होता है, मतलब ये पांडवों, क्योंकि इंद्रप्रस्थ वाज गिवन टू कृष्णा's फैमिली एंड दिस वाज गिवन टू पांडव फैमिली। तो हर्षवर्धन का टीला जहाँ पे बना दिया शेख चिल्ली का मकबरा, उसके ऊपर ही बनाया है। और शेख चिल्ली इज ए पेजोरेटिव नेम गिवन, ताकि लोग, हिंदू लोग वहां पे जाए ना। तो ये शेख चिल्ली ऐसा करके बना दिया उसके ऊपर। दैट आई ऑल्सो हाईलाइटेड। सन्निहित सरोवर, ब्रह्म सरोवर, भीष्म कुंड, मेनी ब्यूटीफुल प्लेस। ऐसा बोला जाता है कि अगर कुरुक्षेत्र की धूल किसी के ऊपर, ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है, अभी लोग उसको माने न माने, लेकिन अगर उसकी धूल किसी पे पड़ जाए तो उसको स्वर्ग मिलता है, ऐसा बोलते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को मजाक में बोलता मैं नरक जाने वाला हूँ, तो इसलिए मुझे कुरुक्षेत्र जाने की ज्यादा जरूरत है। सो आई वेंट देयर। That's
नहीं, before we close today's conversation, I wanted to highlight two things which is emerging from your conversation here. कि जैसे शेख चिल्ली का मकबरा वहां बना दिया वगैरह वगैरह, जैसे आपने कहा कि हम जब वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण मंदिर गए थे जयपुर में, तो सनातन जीवित रहेगा। लेकिन एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें अपने मन में बहुत गांठ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सवाल होता है कि सनातन जाएगा नहीं, लेकिन सनातन जिस तरह से कश्मीर में नहीं है अब, जिस तरह से सिंध के लोगों को, ओरिजिनल सिंध के लोगों के लिए अब सिंध नहीं रहा, सनातन जीवित है उनके अंदर, कश्मीरी पंडित और कश्मीरी लोगों के बीच में, हिंदुओं के बीच में, सिंधियों के बीच में, लेकिन सनातन वहां नहीं है। ये जो प्रहार हम पे हो रहा है, मुझे जो खबर मिली थी कि वृंदावन में नॉन हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, बनारस में बढ़ रही है, शारदा पीठ खत्म हो गया। इस बात को हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे अपने धर्म को बचाने के लिए हमें अपनी जमीन भी बचानी पड़ेगी। और इसी सिलसिले में एक और भी चर्चा कर दूं मैं आपसे कि कल मेरी बात हुई थी सुभाष कक जी से, प्रोफेसर सुभाष कक जी से। तो हमने उस पर चर्चा की थी द कास्ट वॉर इन द यूएस एंड द वे फॉरवर्ड। और एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुद्दा उसमें ऊपर आया। सुभाष कक जी का कहना है कि कास्ट वॉर जो यहां हो रहा है ये तो फिजूल का वॉर है, टारगेट इंडिया है। क्योंकि जिस तरह से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है उसमें व्यवधान डालने के लिए ये सारे प्रयोजन हो रहे हैं, और हम हिंदू जो हैं यहाँ पे, वी आर इजी टारगेट्स बिकॉज वी आर नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड। टारगेट इन कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाली बात है। टारगेट इज इंडिया एंड द सॉल्यूशन लाइज in the institutional framework of temples that must be reestablished. कैसे होगा, इस विचार को हमें सोचना पड़ेगा। So Yeah, I think I would urge all of you to watch that conversation with Subhashi, which is there on the YouTube of Jaipur Dialogue USA, that we are doing that chapter. So अनुरोध करूंगा, सुनिए। सुभाष कक जी कोई एरू गैरू नथु खैरू नहीं है। सुभाष कक जी का अपना अपना अपनी हस्ती है। द आइडिया ऑफ इंडिया की किताब है उनकी, 1993 की आर्टिकल जो मैंने पढ़ी, तो देखिए वहां पे उन्होंने डिफाइन किया है द कास्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, ही इज रिटन इन 1993। इस बात की भी हमने चर्चा की कि हम इस बात को जानते रहे हैं लेकिन फिर भी उसको रोक नहीं पाए या अपने को बचा नहीं पाए। आज ये स्थिति क्यों है? तो हमारी जागरूकता की बहुत जरूरत है, और हमारा सबसे बड़ा एलाय इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बिकॉज दूसरे, देखिए आप इस बात को सोचिए जरा सीरियसली, रिलीजन्स आर बेस्ड ऑन, एसेंशियल ग्राउंडिंग जो है उसकी इज बेस्ड ऑन फियर एंड इग्नोरेंस। सनातन इज नॉट बेस्ड ऑन फियर एंड इग्नोरेंस, इज बेस्ड ऑन नॉलेज, अवेयरनेस, इंक्विजिटिवनेस, इंक्वायरी, लर्निंग, knowing and debate, dialogue and discussion। ये और जगह नहीं है। तो आज साइंस के कारण बहुत सारी चीजों का जो है लोग जानने लगे हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आवर फिलॉसफी इज एक्सेप्टेड। इमेजिन, आपने भी इस बात की चर्चा की है आदित्य जी, सनातन योगा कितना, योग को फॉलो करने वाले कितने हैं दुनिया भर में? बिलियन वो बिलियन समुदाय हो गया है एक, करेक्ट। राइट? अगर अगर योग कंट्री बने तो वी आर 4 बिलियन पीपल, मेजोरिटी। करेक्ट, करेक्ट। 4 बिलियन योगी, इवन इन द मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी, जूइश कम्युनिटी, सब जगह योग होता है। एंड मेनी ऑफ देम कम टू ऋषिकेश फॉर ट्रेनिंग आल्सो। दैट्स और राइट। एंड योग इज द फर्स्ट स्टेप इन कमिंग टुवर्ड्स सनातन। एक्चुअली ग्लोबल साउथ के डेफिनेशन में अगर योग कम्युनिटी को अलग से रिप्रेजेंट किया जाए, इट विल बी द बिगेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट। I am excited to share with you that we are designing that आज की तारीख में मैं भी सड़क पे छोड़ के किसी नुक्कड़ पे योगा आश्रम खोल सकता हूँ, right? Yoga training establishment, but we are laying down the standards
for yoga teaching and That's right. establishment of the yoga ashram. That's also part of our agenda, and we are very close to doing that. I'm going to send you my book, Transcending the Mind. If you don't have it, then I'll No, send I it. don't have that book. Yes. I'll send it to you. And in that, I translated Yoga Sutra as it is Okay. for the Western audience so that we can correct the difference between asana and yoga. Asana is sthira sukham asaram, and asana and yoga is not asana. Asana helps in yoga. That's the way it should be put together. अच्छा, मेरा पटना का एक्सपीरियंस मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ. Bully. The most educated people I met was in Patna. Well educated. Okay. That was my experience generally. क्योंकि मैं तो लोग बोलते हैं ना कि आई इंटरेक्ट विद द रिक्शे वाला, चाय वाला, गार्ड, इन सब के साथ मैं बहुत बात करता हूँ बिकॉज टू गेट द फील. एंड मुझे कहीं भी अदर देन द यूट्यूब के चिंताधारी लोग और व्हाट्सएप के चिंताधारी लोग, उसके अलावा मुझे कहीं भी सनातन धर्म खतरे में नहीं दिखा, कहीं भी नहीं दिखा. और जबकि आई ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग केरल, इंक्लूडिंग तमिलनाडु. एंड वन थिंग आई डिड नॉट लाइक अबाउट केरल वाज वहाँ पे बीफ ओपनली बिक रहा था हर जगह. And many Hindus were also eating it, which was shocking for me. On a Diwali night, I was in Kerala, and which I request Kerala people to correct that anomaly because cow killing is banned in Veda because वो हमको दूध देती है. उसका दूध पी के आप कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, फिर उसको खून की क्या जरूरत है? So that is one thing we should definitely control in Kerala and other places. Only in Kerala I found that. And बाकी सब जगह temples were full everywhere. Temples were full, crowded. Even on the weekdays, temples were full. And unfortunately, sometimes हम लोग जो है ना on the ground नहीं जाते हैं और हम एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा पे काम करते हैं कि सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है. जो पॉलिटिशियंस इस तरह की बातें करते हैं सनातन धर्म डिबंक करने की, दे आर द वंस हु आर इन डेंजर. जो लोग इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, एंड दैट इज ऑल डन ऑन द बेसिस ऑफ वेस्टर्न टूल किट to make Hindus hopeless and so that they don't take shelter of the Sanatan Dharma. अभी जहाँ पे भयम द्वितीय विनिवेशता स्यात्, जिससे जहाँ सनातन धर्म से भय भी भयभीत है, विष्णु भगवान विष्णु से भय भी भयभीत है, तो why will not people go there and take shelter to remove their fear? तो ये जो प्रोपेगेंडा जो चलता है एंड वी प्ले इनटू दैट प्रोपेगेंडा मेनी टाइम्स कि हिंदू खतरे में है, ये खतरे में है. एंड यू हैड अ वंडरफुल टॉक विद सुभाष काक जी आल्सो. द पॉइंट इज इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे अगर आप कोई वेटिकन में गया है, वहां पे आपको स्पिरिचुअलिज्म नहीं दिखाई देगा, या आप कहीं भी और जाएंगे स्पिरिचुअलिटी नहीं दिखाई देगा. लेकिन गंगा के घाट पे चले जाएंगे, मैं पटना में गंगा के स्पर्श किया मैंने, और कावेरी का स्पर्श किया मैंने त्रिची में. तो दोनों नदियों का स्पर्श, तो भारत में वो सब जगह अभी भी हैं जो पुराने काल में मैं वर्णित थी. लेकिन पीपल आर नॉट गोइंग देयर. मतलब सिटी क्राउड इज नॉट गोइंग देयर, लोकल क्राउड्स आर गोइंग देयर. So there are two Indias also. One is the real India on the ground. One is the India living in the cities, and I think the third India is living in the social media. ये तीनों अलग अलग भारत है. तो तो we have to now city and the social media crowd to come down on earth. देखो जाके वो जगह इंडिया में है, सब जगह है. और यहाँ तक इंडिया की बात नहीं हम कर रहे हैं, अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की, आज नेटिव हिस्ट्री मंथ है, नेटिव अमेरिकन का हेरिटेज डे है आज. व्हाट हैपेंड इन थैंक्सगिविंग एंड व्हाट हैपेंड टुडे इज अ कोरिलेशन. हमारे सनातनी कम्युनिटीज है, एंड if we do not start engaging with us because they follow our ethos, our values, our thought process. So it's time for Hindus to take leadership role. Stop listening to other people. Stop listening to any book written by any Western author. Stop quoting them. Anyone. अगर किसी ने वेस्टर्नर ने हिंदू के बारे में लिखा है, you have to stop quoting them. It has to be born in India, part of tradition and part of Indian culture. When you start doing that and speak about ourselves more, देन वी स्टार्ट क्रिएटिंग ए नैरेटिव. क्योंकि अभी लोग हमसे सुनना चाहते हैं आप हमारे बारे में. और अमेरिका में अमेरिकन क्रिश्चियन पास्टर्स आर टीचिंग सनातन धर्म टू अमेरिकन्स. उनसे सीखने का जरूरत नहीं है, हमको अब सीखना है हमारे स्वामी से, हमारे जो परंपराओं से, हमारे ट्रेडिशन से. आई थिंक दैट इज नीडेड. और जब तक हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तब तक हम लोग को कोई और इम्पोर्टेंस नहीं देने वाला.
So it is time for us to get back to the basics 101, जो अपने लोगों की हम सुने, और इंडियन अमेरिकन का, और जो जो इंडियन डायस्पोरा जो बाहर रहता है, हिंदू डायस्पोरा बाहर रहता है, दे हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले ऑल्सो। कि अच्छा, मेरे को एक लॉजिक मुझे विभूति जी समझ में नहीं आया। हमेशा एक आर्गुमेंट हमारे ऊपर एक लांछन लगाते हैं या फिर एलिगेशन रहता रहता है, अरे आप लोगों के पास जब पैसा है, आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना आसान हो जाता है, तो यहाँ पे आके आप घूमते हैं और ये दर्शन लेते हैं। हमारे यहाँ तो डेली लाइफ का ही प्रॉब्लम इतना रहता है कि वी कांट डू इट। इसके उत्तर आपने किस तरह देते हैं लोगों को, अगर कोई आपको ये क्वेश्चन पूछता है तो? दिस इज ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि आप लोग फिरंगी हैं, आप लोग देशद्रोही हैं, आप देश छोड़ के चले गए। तो मैं यही कहता हूँ कि भैया, माइग्रेशन जो होता है वो अपने अपने कारणों से होता है। तो मैंने बिहार क्यों छोड़ा भाई? क्योंकि वहां की अराजकता मुझे अच्छी नहीं लगी, और मैं महाराष्ट्र चला आया पढ़ने के लिए, पूना में रहा। उसी तरह से कुछ लोग पूना से निकल के, मौका मिला, अवसर मिला, मैं अमेरिका आ गया। तो मैं किसी का देशद्रोही नहीं हूं। लोगों को जो ये कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं, हम अपनी गरीबी में रह रहे हैं, लेकिन एक होती है बात आस्था वाली। यू you नो know, आप जो भी हो, जैसे कल ही सुभाष जी ने कहा भी, ब्राह्मण्स वे आर नॉट सपोज टू बी रिच, वी आर सपोज टू बी पुअर, राइट? वेरी पुअर, वेरी द पुअर, पुअरेस्ट। right? So the question arises that if the poor Brahmin can do what he was expected to do, why can't everybody else become a Brahmin? This is a very interesting thought, comes from the Rig Veda, right? This is very important for me to share with the audience here. जैसलमेर जब हम गए थे, तो हमारा जो ड्राइवर था, जो मुझे, हम 3 लोगों को एक गाड़ी में होटल सूर्यगढ़ रिजॉर्ट ले जा रहा था, तो मैंने उसका नाम पूछा। ही सेड हमारा नाम है, ही सेड हिज नेम इज, अभी अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, बट हिज नेम वाज अनवर और रहमान। ओके, सॉरी, गुड, हिज नेम इज रहमान। ही सेड हिज नेम इज रहमान। मैंने उससे पूछा कि जैसलमेर के फोर्ट की क्या कहानी है। तो उन्होंने कहा, बट मैं, मुद्दे की बात यह है, समय के अभाव में ये कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि ये थोड़े सारे ब्राह्मण लोग सारे देश को चलाते हैं। ये एक्चुअल कॉन्वर्सेशन है। मेरे पीछे 2 और भी लोग थे, उनमें से एक था पूना से मुस्लिम बंदा, जो कि हमारे गोखले इंस्टीट्यूट का एलुमनाई था पहले, तो हमारी दोस्ती हो गई थी। और एक था IIM-IIT का बंदा, जो कि बिल्कुल वो स्पिरिचुअल हो गया था, मेन नौकरी छोड़ करके। तो जब रहमान ने मुझे कहा कि ब्राह्मण लोग ऐसे करते हैं, तो मैंने उससे कहा कि जब भी आप अपने भेजे का इस्तेमाल करते हैं, जब भी आपने ब्रेन का इस्तेमाल किया, तब आप ब्राह्मण बन जाते हैं। कर्म की बात है। जब आप हाथ पांव का इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्षत्रिय बन जाते हैं। जब आप पापी पेट के लिए कुछ करते हैं, तो आप वैश्य बन जाते हैं। और जब आप मल मूत्र की सफाई करते हैं, तो आप डोम भी बन जाते हैं, शूद्र भी बन जाते हैं। तो सारा का सारा विधान जो है इसी शरीर में है। हम सब हर समय में, समय के अनुसार उस प्रवृत्ति में चले जाते हैं। तो रहमान ने मुझे कहा कि झा साहब, ये तो ज्ञान मैंने कभी सुना ही नहीं था इसके बारे में। तो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वांट टू टेल यू व्हाट आदित्य जी इज सेइंग। इंडिविजुअली we are everything in ourselves. Poverty doesn't matter. Think about it from that point of view. Money doesn't matter. Money is a means to doing something, right? The 9/11 bombers were all educated people, right? There are educated people, उनके दिमागी फितरत खराब हो जाती है तो पागल हो जाते हैं. So education, money, these are all means to doing something. But you as an individual have to make yourself flourish here. वही मैंने रहमान को कहा कि आपने कभी तो अपना दिमाग नहीं देखा है, ब्रेन नहीं देखा है, और आपके सर की साइज बॉडी के हिसाब से क्या तुलना रखता है। तो जब आप ब्राह्मणों को गाली देते हो, और बाय द वे वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ही सेड मोदी देखिए ब्राह्मण है। मैंने कहा कि मोदी जी ब्राह्मण कहा, वो तो ओबीसी है। हैं? उसने ऐसे ही कहा है, वो ओबीसी है।
मैंने कहा कि हाँ वो तो ओबीसी हैं। तो हमारे पीछे जो दो लोग थे उन लोगों ने भी रहमान को कहा कि अरे वो तो ओबीसी है, वो ब्राह्मण नहीं है। उसके मुंह से हवा उड़ गई थी। तो मैंने उसे कहा, जाके अल्लाह से माफी मांगो कि आज तुमने एक किसी इंसान को जो वो चीज नहीं है उस पर गालियां दी होंगी तुमने पिछले 10-15 सालों में। अल्लाह से माफी मांगो, कहीं वो नाराज ना हो जाए तुमसे। तो रहमान भी हंसने लगा, कहा कि झा साहब आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि आपने मुझे वो बात बताई जो मुझे पता नहीं थी और मैंने धोखा खा गया था। दिस इज वॉट एवरीबडी इन इंडिया नीड्स टू डू, whether you have money or not. Do your bit when the time comes. That's what is important. Don't worry about us. You know, people, there are rich people in India, there are poor people in India. There are rich people in America, there are poor people in America. Not every Indian in America is a multimillionaire. Not every Indian in India is a multi-billionaire. So let's remember that part. Laws of numbers operate. आप जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं करिए. That's all I would request. और एक्चुअली अगर आपको गरीबी हटानी है तो फिर मंदिर जाएंगे तो वापस मतलब मिल Exactly. सकता है एग्जैक्टली। Exactly. और और सनातन धर्म इज द ओनली कल्चर वेयर यू कैन एक्चुअली अर्न पुण्य एंड गेट बेटर इन लाइफ। पुण्य बाकी कहीं पे कमाते हैं, पुण्य नहीं हमारे धर्म में पुण्य कमाते हैं, पुण्य कमाना पड़ता है, मिलता नहीं है किसी को। मिलता नहीं है, पुण्य कमाना पड़ता कन्फेशन है। से कन्फेशन से पुण्य नहीं मिलता है। वो सब तो बिजनेसमैन है, वहां पे $50 दोगे कन्फेशन हो जाएगा, बस हो गया। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स देयर। तो That's यहाँ पे right. फ्री है हर चीज, हर मंदिर फ्री है। तो Right. आप जा सकते हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी। एंड ऑल्सो आप लोग इतना पॉवर्टी की बात कर रहे थे, दुनिया की सबसे पुअर कंट्रीज आर द पुअर कंट्रीज आर रन बाय द चर्च। अमेरिका चर्च नहीं चलाता, अमेरिका इज रन बाय द बिजनेसमैन। सो अमेरिका में इसीलिए है क्योंकि लोग पुरुषार्थ भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। बट एट द Right. सेम टाइम देयर आर मेनी बैड थिंग्स आल्सो एसोसिएटेड। भारत, I think सनातन इकोनॉमिक्स इज द ओनली थिंग विच इज सर्वाइविंग। और मंदिर बेस्ड इकोनॉमी को वापस सपोर्ट करने की आवश्यकता है। तो Correct. इसलिए मंदिरों के साथ जुड़ना आवश्यक है हम लोगों को, और रिवाइव करना भी आवश्यक है। तो सो दैट द मेडिसिन, फूड एंड एजुकेशन इज फ्री। दीज थ्री थिंग्स शुड बी फ्री। एंड तो वो तो भारतीय एजुकेशन सिस्टम है ही ऑलरेडी। And think about it from this perspective. The invaders who came to India, they destroyed temples. करेक्ट। There was a reason for that. They burnt down Nalanda. करेक्ट। There was a reason for that. You know, I don't know whether you know about it on a BBC about 2 or 3 weeks ago, did a chapter, a pictorial thing on reconstruction of Nalanda. And I will send you that information. Very nice English written there that the majestic University of India, Nalanda, the first residential university where 10,000 students were, I think numbers were, I do not recall exactly, which the temple was suddenly destroyed. This is the first page. Suddenly destroyed. No mention of who did it, no mention of how it happened, but it was destroyed. When I went into the narrative, they say it is alleged that Bakhtiyar did that. Alleged. Think about how the West distorts our history. वो तो खुद बोलता है मैंने जलाया है। Exactly. Exactly. Himself says I have burned it। Correct. Correct. So, हम लोगों ने वर्ड्स नहीं बोल डाले। थैंक यू सो मच विभूति जी, एंड दिस thank वाज you. अवर शॉर्ट इंडिया एक्सपीरियंस। This was बहुत our ज्यादा short बोल India सकते experience. We didn't discuss any topic, we didn't make it political, but there was so much message here, and I hope people would have enjoyed it. If you have learned something, as the saying goes here, if you see something, say something. It's time for us to open our eyes. And I make the call of Swami Vivekanand, arise, awaken, and assert, to which I add my fourth A, act. Because if you don't act, your knowledge, wisdom, and intelligence means nothing. थैंक यू Thank you. वेरी मच विभूति जी, एंड Thank थैंक यू ऑल द व्यूअर्स फॉर वाचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लेट अस नो योर फीडबैक, एंड नमस्ते टिल नेक्स्ट टाइम।